के लिए नया वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आरबीएस फिजिक्स के हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। आज यहाँ हम फर्स्ट चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड का यूनिट्स एंड डायमेंशंस उसे हम लोग पढ़ते हैं। नाउ यूनिट एंड डायमेंशंस, we study in physics the nature and natural phenomena. To study the natural phenomena, it is necessary to measure the physical quantities. Without measuring the physical quantity, we cannot complete study the physics. For example, if a body is coming down towards the earth in gravitational field, we should know the height from where it is coming up, the starting velocity, the velocity of the striking the earth, the velocity at some time, and the total time taken to come to the earth. Number of things are there to be measured. So to measure the quantities, we require a unit, a standard, with the help of which we measure the quantities. For example, if we want a table and we don't have anything to measure the length and breadth of this table, and we want to say to the carpenter to make this table. So now to measure this table, we can use, suppose we have a rod, and that rod like this. When we put this rod here, the length is 3 times the rod, and similarly the breadth is 2 times the rod. We can say then the length of this table is 3 times the rod. Here we have measured the length with the help of the rod. We have taken a quantity with which we measure this whole length. This is the unit, and this is the numerical value. This whole length is 3 times this rod. Similarly, the breadth is 2 times this rod. So here rod is a unit, but this rod is not a standard. This may vary. Suppose we have a rod, but after some time this is broken, then this length will vary. Therefore, to measure the quantities, there must be some standard. When we have a standard that may be obtained, that is standard, and that is taken everywhere in the whole world. So that is known as unit. The unit is a standard taken to measure the similar quantities. Similar means the standard of length to measure the length, standard of mass to measure the mass, standard of time to measure the time, etc. Here we can say that unit is a standard. Unit is a standard to measure means compare. We compare the whole length. We compare this length with this length, and this whole length is 3 times this length. So here measure means we compare. The unit is a standard to measure the similar physical quantity. Here, for any quantity, we have two things. One is numerical value and other is the unit. That is a physical quantity
is product of the numerical value and the unit. Unit measures and n is the numerical value. Now these units, there are two types of units. One unit which do not have any relation with other units, and they are independent. Another unit depend upon some units. So there are two types of units. The units which are independent are called fundamental units. Fundamental units. These units are not related to each other. They don't have any relation with each other. And other unit is derived unit. These depend upon these fundamental units. And these are called derived unit. Now there are 7 fundamental units, and rest all the units of the physical quantity in physics are derived units. तो अब हम लोग यहाँ दो तरह की यूनिट्स हुई, एक तो हुई फंडामेंटल यूनिट एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड यूनिट. डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स जो बेसिक क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. यहाँ पर हम फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं और वो किन, उनके लिए सिंबल कौन सा हम प्रयोग करते हैं. फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट्स का क्या नाम है और उसके लिए कौन सा सिंबल हम प्रयोग करते हैं. ये हो गई क्वांटिटी. नेम ऑफ यूनिट, सिंबल. The quantities are in mechanics. There are 3 quantities. मैकेनिक्स में 3 भौतिक राशियां हैं, 3 क्वांटिटीज हैं. एक आता है मास. फर्स्ट इज मास. मास के अलग अलग सिस्टम को ले तो उनके नाम अलग अलग आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एमकेएस में लेते हैं तो मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, या पीएस में ले तो मास के लिए पाउंड का प्रयोग करते हैं, एंड इन सीजीएस सिस्टम मास के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं. तो और एसआई सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है, जिसको सभी लोग मानते हैं, अब वो उसी को सभी मान रहे हैं, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट में भी हम उसको किलोग्राम मानते हैं. तो ये जो हम लिख रहे हैं यूनिट्स, ये एसआई हैं, एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम मास का किलोग्राम
शॉर्ट में हम उसको केजी लिखते हैं, लेकिन उसको सिंबल हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है लेंथ। लेंथ को मीटर से लिखते हैं, मीटर, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको यहाँ ये शॉर्ट में लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तीसरा है टाइम, सेकंड, यस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ये जो तीन हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियां हैं, ये हमारी मैग्निस की तीन राशियां हैं जो प्रारंभ से ही इनका प्रयोग होता रहा है। आज विज्ञान की खोज के बाद जब इतना डेवलपमेंट्स हो गया तो बहुत सारी और राशियां आ गई, उनमें भी बहुत सारी राशियां हैं जिनको कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें फंडामेंटल इसलिए भी हैं क्योंकि मास लेंथ से रिलेटेड नहीं है, न ये इस पर डिपेंड करेगा न इस पर डिपेंड करेगा। तो दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, इनसे एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसके बाद चौथी यूनिट आती है ताप, टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इसका है केल्विन। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट का नाम है कैंडेला। कैंडेला इन शॉर्ट इट इज रिटन CD, और इसका सिंबल भी CD ही प्रयोग होता है। सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ए से इसको दिखाते हैं और इसका सिंबल भी ए ही है। और सेवेंथ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसको मोल कहते हैं, मोल। और उसका सिंबल है मोल। ये जो सात है हमारे पास, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा दो इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, दो इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में उसमें एक आता है प्लेन एंगल, कोण। कोण यानी दो रेखाओं के बीच का झुकाव, दिस इज एंगल, प्लेन एंगल।
The unit is radian, represented by radian. And second supplementary unit is solid angle. सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन, और इसको हम स्टेरेडियन या सार से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और इंडिपेंडेंट हैं, वो इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट हैं उन्हीं को हमने फंडामेंटल यूनिट मानी है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और इसके अतिरिक्त दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल किसी भी प्लेन के द्वारा बनने वाला कोण, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितने भी अनफिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, ये इनको इतने को छोड़कर वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड मीन्स वो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स पर निर्भर करती है। तो डिराइव्ड यूनिट्स अब डिराइव्ड यूनिट्स तो इसके अतिरिक्त जितने भी हैं बाकी सब, उदाहरण के लिए चाल यानी स्पीड, स्पीड इन्हीं पर निर्भर करती है। स्पीड बराबर लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, मीटर सेकंड -1। तो ये जो हमारी स्पीड है ये डिराइव्ड यूनिट है इसकी, ये मीटर पर सेकंड, ये स्पीड की यूनिट डिराइव्ड है। ये फंडामेंटल यूनिट इस पर लेंथ पर मीटर, और फंडामेंटल यूनिट टाइम सेकंड पर निर्भर करती है, मीटर प्रति सेकंड और मीटर सेकंड -1। इसी प्रकार त्वरण एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी ये स्पीड या वेलोसिटी का है मीटर अपॉन सेकंड, और एक टी और है, इस तरह से ये हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी वी कैन राइट इट मीटर सेकंड -2, मीटर सेकंड -2। कभी कभी इसको हम इस तरह भी लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे सेकंड को नीचे करेंगे तो ये स्लैश बना के लिखेंगे, और या फिर उसको डैश करके और यह सेकंड की पावर -2 ऊपर लग कर दिया तो 2 की जगह -2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये माइनस नहीं है, ये जग स्पेस बनाया है कि जिससे ये दोनों को अलग अलग हम देख सकें, जान सकें। इस तरह जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इतने के अलावा उन सब की यूनिट्स सभी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। आइए दो एक हम डिराइव्ड यूनिट्स करते हैं। डिराइव्ड यूनिट में सपोज कर लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2
upon r square, where g is a constant, m1 and m2 are two masses, r is a distance between two masses, this is the force between these two masses. हमको ये g की यूनिट निकालनी है, इसीलिए g इक्वल टू, g को यहाँ रहने दीजिए, बाकी इधर ले आइए, ये नीचे है इधर आएगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। अब यहां पर समानता ये जो फोर्स है इसका हम मात्रक अभी नहीं जानते, आर का जानते हैं, m1 m2 का जानते हैं। आप देखें यहां इस फोर्स का यहां निकाल सकते हैं, हमें जानते हैं कि जो फोर्स है F ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का हम निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2, मीटर सेकंड -2। तो ये हो गया हमारे बल का, हमने यहां रख दिया किलोग्राम मीटर सेकंड -2, इसका हो गया। इसके बाद हो गया आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम 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 स्क्वायर। अब इसको काट दें, 1 किलोग्राम से कट जाएगा, तो इसका मात्रक अगर फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, मीटर क्यूब किलोग्राम -1 सेकंड -2। ये तो इस फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर हमने इस जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर इसका नाम रख देते, यूनिट तो इसका ये था, लेकिन इसका नाम इस यूनिट का है न्यूटन, तो अगर हम इसका न्यूटन रख देते तो इसका न्यूटन के रूप में आ जाता, यद्यपि वो फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में नहीं था, क्योंकि न्यूटन फंडामेंटल यूनिट्स का, इस फंडामेंटल यूनिट्स का नाम है न्यूटन, लेकिन इसका जो फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में निकालेंगे तो उसका मात्रक या उसका यूनिट यही आएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन। डायमेंशन एरिया, एरिया ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी यल स्क्वायर। एरिया बराबर लेंथ 2 बार, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, यल स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम V इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज रिटन लाइक यल क्यूब। इसी तरह से यदि हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स F, तो फोर्स के लिए हम लोगों ने देखा है m फंडामेंटल यूनिट, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हुआ, m मास के लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए यल, इसके लिए तो। अब ध्यान से देखिए, ये हुआ m यल t -2। ये फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल्स हैं, ये इनकी पावर लगाई हुई है।
यदि इनकी पावर बदल जाती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी अलग हो जाती है। एरिया है तो लेंथ की 2 पावर है, लेकिन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है तो उसमें यल की 3 पावर है। फिजिकल क्वांटिटी तो वही है लेकिन पावर बदल गई। यहाँ पर फोर्स है तो ये जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। ये जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर रेज की जाती है, दिस पावर इज डायमेंशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। दी पावर्स raised on the fundamental units to represent the quantity is dimension। यहां पर आप देखिए एरिया का डायमेंशन, एरिया इसका डायमेंशन है लेंथ की पावर 2। और वॉल्यूम में है लेंथ की पावर 3। और इसी तरह फोर्स में मास की 1, लेंथ की 1 और टाइम -2। तो दीज आर दी डायमेंशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन। A is equal to L power 2, V is equal to L power 3, F is equal to M L T minus 2. This is called A is equal to L square या V is equal to L cube, F is equal to M L T minus 2. This is the relation between the physical quantity and its dimension. This is called dimensional equation. This is dimensional equation. Dimensional equation. अब हम लोगों को ये जो यूनिट और डायमेंशंस हैं, ये जो डायमेंशंस है ये हमको निकालना रहता है। डायमेंशन से संबंधित कुछ चीज़ें हमें और भी देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल पाई कोई डायमेंशन नहीं, ई कोई डायमेंशन नहीं, ई की पावर x है तो x का भी कोई डायमेंशन नहीं। log x कोई डायमेंशन नहीं। ये इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं इनका कोई भी डायमेंशन नहीं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन कास, टैन काट, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, इनका भी कोई
डायमेंशन नहीं होता, इस डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं इनका डायमेंशन नहीं होता, ना तो उनका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आते भी हैं तो इनका डायमेंशन शून्य होता है, इनका डायमेंशन हम शून्य मान के चलते हैं। कोई डायमेंशन नहीं। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, सामान्य फिजिकल इक्वेशन है, भौतिकी का समीकरण है। वो भौतिकी समीकरण कुछ इस प्रकार है, V इक्वल टू U प्लस AT स्क्वायर प्लस CT प्लस D अपान E T प्लस FT स्क्वायर। इस तरह का एक इक्वेशन हमारे पास है। इसमें जितने भी टर्म हैं सभी के विमाएं सबकी समान होगी। विमा के दृष्टि से यह समान अगर नहीं होगा तो फिर भौतिकी का यह समीकरण गलत है। तो किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं, लेफ्ट में ये एक टर्म है, राइट में हमारे पास एक टर्म ये है, एक ये है, ये है, और यहां पर टर्म ये है। जो इसकी विमा होगी वही सबकी विमा होगी। ये वेलोसिटी है, हम जानते हैं कि इसकी विमा है L/-1 मीटर प्रति सेकंड। अब लंबाई बटा समय, ये अगर वेग का है तो इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी होगा, इस पूरे का, ये सभी टर्म का एक ही होगा। तो किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म है राइट या लेफ्ट में, सबकी विमाएं समान होती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी, इस टर्म को अगर आप देखें तो इसके दो भाग हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी भाग होंगे इनकी विमाएं आपस में बराबर होंगी, इसकी और इसकी विमा आपस में बराबर होगी। यानी ये CT है तो जो विमा इस CT की होगी वही विमा इस D की होगी। इसी तरह यहाँ भी जो विमा इसकी होगी वही विमा इसकी होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जितने भाग होते हैं सबकी विमाएं आपस में बराबर होती हैं, और इस पूरे की विमा सभी जो टर्म्स हैं उनकी विमा के बराबर होगी, यानी पूरे की विमा इसके बराबर होगी। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन की विमाओं की जो होमोजेनिटी है, होमोजीनियस हैं ये विमाएं सब जगह की, इसका भी इस्तेमाल हम समीकरणों की जांच में करते रहते हैं। ये तो हो गया हमारे डायमेंशन से संबंधित। अब हम डायमेंशन का कितना उपयोग करते हैं, आइए हम डायमेंशन का एक आध उपयोग देखते हैं। डायमेंशन का उपयोग, पहला उपयोग हम लोग आज देखते हैं। चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई भौतिकी का समीकरण है, वो सही है विमा के दृष्टि से या नहीं, ये देखना है। अगर कोई भी विमा के दृष्टि से सही है
तो वो समीकरण सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो बीमा की दृष्टि से तो उसको सही होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें हम इनकी बीमाएं दोनों पक्ष में रख देते हैं। पुटिंग दी डायमेंशंस, टी की डायमेंशन टी, 2 पाई हमने आपको बताया कि 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं। आगे है यल, अंडर रूट मीन्स हाफ पावर, नीचे है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने देखा यल टी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यल टी माइनस 2। ये कट जाएगा, ये हो गया 1 अपान यल हाफ टी माइनस 2, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जी भी है, अंडर रूट। दिस इज यल टू दी पावर हाफ, अंडर रूट आता है यल टू दी पावर हाफ और टी टू दी पावर माइनस 1। -2 का अंडर रूट करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, -1 रहेगा, ये कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू टी टू दी पावर 1, माइनस है 1 ये ऊपर ले गए, दोनों वर्ग की विमाएं बराबर हैं। दी डायमेंशंस on both sides are same. Equation is dimensionally correct. इस तरह से हम किसी भी समीकरण की जांच कर लेते हैं। आप लोगों ने वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे लाइक करना ना भूलें। हमने अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें फॉलो करके और हमारे नोट्स और अन्य तरीके की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत